So good morning all of you. So in the last class we were discussed about the hormones of pituitary gland beta. So now we'll go for the another gland of the what it called the endocrine system, that is nothing but thyroid gland. So thyroid gland के बारे में यहाँ पे देखें तो so the thyroid gland which is there majorly it is an important gland in our body beta. तो कैसा बोलो तो यहाँ पे देखें तो so this is the largest endocrine gland in the body beta. Largest endocrine gland कौन सा, ये thyroid gland जो होता है, ओके ना. So it is weighing for 25 to 30 grams. 25 to 30 grams ये रहता है बेटा. So measures about 5 centimeters in length and 3 centimeters in the width. 5 centimeters length and 3 centimeters width में ये कौन सा thyroid gland रहता है बेटा. So it is located in the which one, anterior region of the neck बेटा. Located in anterior region of neck. कहाँ पे? Anterior region of the neck, just below the larynx. Just below the larynx बेटा. कौन सा? ये पर्टिकुलर thyroid gland वहाँ पे रहता है. And at the same time, so that is ventrolateral to the trachea. कहाँ पे रहता है वो? Ventrolateral to trachea में ये क्या है तो thyroid gland यहाँ पे रहता है बेटा. And at the same time, thyroid is divided from the endoderm of the embryo beta. So it will be derived from thyroid, derived from where? Endoderm. So endoderm से यहाँ पे ये form हुआ जाता है बेटा. So endoderm of the embryo. So it varies in size as per the age, sex and diet beta. The size vary with which one? एज, सेक्स एंड डाइट. बोल तो अपने एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, अपने खाने के हिसाब से उसका साइज बदल जाता है बेटा. सो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. रेडिश ब्राउन इन कलर में कौन सा? ये थायराइड ग्लैंड रहता है बेटा. ओके ना. सो इट इज द बाइलोब्ड एंड हाईली वेस्कुलर. Bilobed and highly vascular. Vascular बोलते क्या होता है? ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहता है बेटा. And at the same time, the two lobes of right and left, which are joined by connective tissue, which is called as isthmus. Two lobes are joined by CT, connective tissue, called क्या बोलते हैं इसको? isthmus बोल के बोला जाता है बेटा. What it called? Isthmus बोल के बोला जाता है बेटा. So which is the at second to fourth tracheal cartilage. At which one? Second to fourth tracheal cartilage में कौन सा रहता है बोलो तो ये isthmus रहता है बेटा. And at the same time, the structural and functional units of the thyroid glands are thyroid follicles. Thyroid follicles are structural and functional units बोल के बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो लाइक दैट विच द पर्टिकुलर टाइप ऑफ thyroid gland structure देखे तो. And externally the gland is covered by what? A thin connective tissue. Externally it is covered by a thin connective tissue which is called capsule बोल के बोला जाता है बेटा. What it called? Capsule बोल के यहाँ पे बोला जाता है. ओके ना. नेक्स्ट so next यहाँ पे देखें तो majorly from the capsule it will be having it separated by the what it called
ट्रैबेकुले आर प्रेजेंट इन देम बेटा. So यहाँ पे each lobe which is there, they will having many thyroid follicles are present बेटा. So total number of thyroid follicles यहाँ पे देखिए तो about what is called 3 million of thyroid follicles are present in the where the thyroid gland बेटा. So hormones of thyroid gland के बारे में एक बार देखें तो हार्मोन्स, ओके ना, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में एक बार देखें तो बेटा यहाँ पे द थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज, स्टोर एंड डिस्चार्ज थायराइड हार्मोन्स. इट synthesize, stores and discharge thyroid hormones बेटा, ओके ना. इट सिंथेसाइज, स्टोर एंड डिस्चार्ज. बोल तो वो क्या करता, उसमें सिंथेसिस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसे डिस्चार्ज किया जाता है बेटा. सो विच आर व्हाट इट कॉल्ड थायरॉक्सिन, आल्सो कॉल्ड एज टेट्राआइडोथायरोनिन बोलता है बेटा. थायरॉक्सिन T4 which is called as टेट्राआइडोथायरोनिन बोल के बोला जाता है. टेट्राआइडोथायरोनिन बोल के बोला जाता है बेटा, टेट्राआइडोथायरोनिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन. ट्राइआइडोथायरोनिन बोल के बोला जाता है बेटा. एंड उसके साथ साथ थायरोकैल्सिटोनिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन को भी ये क्या है बोल तो रिलीज किया जाता है बेटा, ओके ना यहाँ पे. सो ये 3 टाइप के हार्मोन्स को कौन रिलीज किया जाता है बेटा, थायराइड ग्लैंड रिलीज किया जाता है बेटा. सो यहाँ पे देखें तो मेजरली T3 and T4 are iodinated बेटा. T3 and T4 are iodinated. बोल तो क्या होता है, iodine is important for this T3 and T4 iodinated derivatives of amino acid thyrronine. Derivatives of amino acid थायरोनिन बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा, ओके ना. एंड एट सेम टाइम यहाँ पे both are which are stored in the which one follicular cavity before the secretion and supposed to have same function majorly, okay na. So the secretion of T3 and T4 are regulated by thyroid stimulating hormone. Secretion of T3 and T4 regulated by thyroid stimulating hormone of the which one pituitary gland beta, okay na. So this particular type of thyroid stimulating hormone, okay na, are thyrotropin of pituitary gland in the negative feedback matter beta. So T3 is more active and T4 is more potent hormone beta. T3 more active होता है, T4 more potent होता है बेटा, ओके ना, potent, okay na. So like this which one the particular type of what it called the T3 and T4 हार्मोन्स आर प्रेजेंट बेटा. तो इसमें थायरॉक्सिन का थोड़ा फंक्शंस के बारे में यहाँ पे देखें तो सॉरी थायरॉक्सिन फंक्शंस के बारे में यहाँ पे एक बार देखिए तो मेजरली थायरॉक्सिन इज द मेन मेटाबॉलिक हार्मोन in the what it called body. It maintain the basal metabolic rate. Maintain BMR, that is nothing but what? Basal metabolic rate by increasing glucose oxidation. By increasing glucose oxidation.
ओके ना, कौन सा, ये थायरॉक्सिन क्या करता है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करके बीएमआर रेट को मेंटेन करने के लिए यूज होता है बेटा. एंड एनर्जी प्रोडक्शन नोन एज व्हाट इट कॉल्ड कैलोरोजेनिक इफेक्ट. एंड एनर्जी प्रोडक्शन known as what कैलोरोजेनिक इफेक्ट बोल के इनको बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो लाइक दैट विच वन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड थायरॉक्सिन हार्मोन विल बी मेंटेन बेटा. सो इट कंट्रोल नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल्स नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को ये कंट्रोल किया जाता है बेटा. सो इट इज आल्सो कंट्रोल द फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स, फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स. ओके ना, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स को भी ये क्या करता है बोले तो मेंटेन किया जाता है. एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल व्हाट इट कॉल्ड mental faculties, development of mental faculties भी ये किया जाता है बेटा. एंड उसके साथ it controls tissue differentiation and metamorphosis, controls tissue differentiation and metamorphosis, tissue differentiation and metamorphosis, particularly in amphibia. Okay, so like that which one the particular what it called the thyroxine hormone will be present. Okay, and it control body weight, respiration rate, controls बॉडी वेट, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल किया जाता है. उसके साथ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बीपी एंड टेम्परेचर आल्सो. ओके ना, टेम्परेचर, डाइजेशन, टेम्परेचर, डाइजेशन एक्सेट्रा. ओके ना, ये पूरा कौन सा बोले तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन मेंटेन किया जाता है बेटा. सो थायरॉक्सिन हार्मोन का ये फंक्शंस होता है बेटा. सो डिफिशियंसी ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन. ओके ना, सो डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन द चाइल्डहुड कॉजेस क्रिटिनिज्म. क्या आता है इसमें, क्रिटिनिज्म बोल के बोला जाता है बेटा. डिफिशियंसी इन चाइल्डहुड. ओके ना, सो किसमें, बच्चों में अगर डिफिशियंसी हो तो क्या होता, क्रिटिनिज्म. सो द सिम्टम्स आर व्हाट इट कॉल्ड रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. सो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ में रिटार्डेशन इसमें होता है बेटा. सो डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन अडल्ट कॉजेस मिक्सेडिमा. मिक्सेडिमा किसमें होता है, अडल्ट्स में हो जाता है बेटा. ओके ना, सो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स यहाँ पे देखें तो थिकनिंग एंड पफ्ड ऑफ द स्किन and at the same time subcutaneous tissue particularly of the face and extremities यहाँ पे क्या होता है, खुल जाता है बेटा पूरा बॉडी का. एंड पेशेंट्स आर विथ विच वन, लो बीएमआर होता है इसमें. ओके ना, एंड आल्सो केम कॉजेज द मेंटल डलनेस, लॉस ऑफ मेमोरी एंड स्लो एक्शंस इसमें होता है. सिंपल गॉइटर मेजरली, simple goiter. Okay, so the simple goiter is caused due to deficiency of iodine. Caused due to deficiency of iodine बेटा. क्यों बोलते हो, T3 में T4 में आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है बेटा. तो आयोडीन का डिफिशियंसी होता है. आयोडीन मेजरली इन डाइट एंड ड्रिंकिंग वाटर. इन डाइट एंड ड्रिंकिंग वाटर में अगर वो आयोडीन परसेंटेज नहीं हो तो क्या होता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है बेटा. सो इट कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. causes enlargement of
थायराइड ग्लैंड, कौन सा, ये डिफिशियंसी ऑफ व्हाट इट कॉल्ड थायरॉक्सिन बेटा। सो गाइटर से ये थायराइड ग्लैंड खुल जाता है। यूज ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट प्रिवेंट द दिस डिसऑर्डर। सो इट इज कॉमन इन द वेयर व्हाट इट कॉल्ड हिली रीजन। हिली रीजन में क्या होता है बोल तो ये मेजरली प्रॉब्लम होता है बेटा। सो एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेस एक्सॉफ्थाल्मिक गॉइटर बेटा। एक्सॉफ्थाल्मिक गॉइटर बोलता है, एक्सॉफ्थाल्मिक गॉइटर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिसीज बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। सो एक्सॉफ्थाल्मिक कैसे बोलते हो, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, ओके ना। सो देयर इज अ what it called slight enlargement of thyroid gland, so it increases the BMR, heart rate, pulse rate and everything, BP, okay na. So deposition of the which one fat will be occur in this beta, okay na. So like that the which one the particular type of what it called this कौन सा हार्मोन रहता है थायरॉक्सिन के बारे में ये। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो थायरोकैल्सिटोनिन बोल के और एक है इसमें, है ना, थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन बोल के यहाँ पे बोला जाता होगा। सो इट इज सिक्रेटेड बाय मेजरली द पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट पैराफोलिकुलर सेल्स, ओके ना। इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है बोल तो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए जो होता है बेटा, दिस हार्मोन स्टिमुलेट बोन्स टू टेक अप कैल्शियम, स्टिमुलेट्स बोन्स टू टेक अप कैल्शियम, ओके ना। कैल्शियम को टेकअप करने के लिए यूज हुआ जाता है बेटा, ओके ना, फ्रॉम द ब्लड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट from blood for what it called development of calcium phosphate बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। एंड उसके साथ यहाँ पे देखें तो मेजरली देन बाय डिक्रीजिंग द blood calcium level, increase the calcium level of the blood, stimulate the which one majorly the secretion of thyrocalcitonin, ओके ना। सो ऐसा क्या होता है तो ये थायरोकैल्सिटोनिन यूज हुआ जाता है। अपना बोन स्ट्रांग रहना तो मेजर ये थायरोकैल्सिटोनिन होना चाहिए बेटा, ओके ना। सो लाइक दिस विच वन थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ओके ना। सो ये पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में यहाँ पे देखिए तो सो ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है बोले तो मेजर इट इज लोकेटेड on the back side of thyroid gland, located on the back side of thyroid, okay। thyroid gland के पीछे क्या होता है तो ये parathyroid gland रहता है बेटा। so this is of two pairs of parathyroid glands, two pairs of parathyroid ग्लैंड्स यहाँ पे रहता है बेटा, ओके ना। तो यहाँ पे देखें तो प्रेजेंट ऑन वन पेयर ऑफ ईच लोब। सो पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन नोन एज पैराथायराइड हार्मोन, secretes a peptide hormone, what, parathyroid हार्मोन बोल के बोला जाता है। व्हाट इज कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, व्हाट इज कॉल्ड एज PTH बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। तो यहाँ पे देखें तो द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड विच इज रेगुलेटेड बाय the level of calcium in the blood regulates the secretion of PTH, regulates the secretion of PTH बेटा, ओके ना। तो इसमें क्या होता है मेजरली
this hormone increases the calcium level in the blood beta. It increases calcium level in blood. ओके ना, उसको थायरोकेस्टोरेन क्या करता है, रेगुलेट किया जाता है बेटा. सो इट इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बोल के बोला जाता है. PTH इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बोल के बोला जाता है. हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बोल के इनको बोला जाता है. ओके ना, सो लाइक इट इज प्रेजेंट बेटा. सो दैट्स the calcium balance is maintained by TCT and PCH. Okay, calcium balance is maintained by TCT and PTH बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. ओके ना, सो दिस इज अबाउट विच वन, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में. नेक्स्ट वी गो फर्दर अनदर व्हाट इट कॉल्ड. पैराथायराइड ग्लैंड के बाद और एक ग्लैंड क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड बोल के बोला जाता है बेटा. थाइमस, थाइमस ग्लैंड. सो ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है बोलते हो, इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ हार्ट. लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ हार्ट में क्या होता है बोलते हो, ये थाइमस ग्लैंड रहता है बेटा. एंड एरोटा. ओके ना, सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ लोब्यूल्स बेटा. फॉर्म्ड ऑफ लोब्यूल्स, इसमें भी क्या होता है तो लोब्यूल से ये फॉर्म हुआ जाता है बेटा. सो द थाइमस प्लेस व्हाट मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम. इट प्लेस major role in development of immune system और immunity power के लिए ये यूज हुआ जाता है बेटा. So the peptide hormone known as what it called thymosin. Peptide hormone thymosin secreted by thymus. Okay na, peptide hormone which is known as thymosin will be secreted by what it called thymus, which plays an important role in differentiation of T lymphocytes. Plays an important role in differentiation of T lymphocytes बेटा. सो T lymphocytes क्या था, T हेल्पर, T किलर, T सप्रेसर, T मेमोरी, ऐसा डिफरेंशिएट होता है ना. तो उसके लिए क्या होता, तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थाइमोसिन विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बेटा. एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए तो मेजरली these cells which are there, they produce cell mediated immunity. T cells produce cell mediated immunity बेटा. T cells produce what? Cell mediated immunity को ये यूज हुआ जाता है बेटा. And the thymosin are also what it called promote production of what antibodies by providing humoral immunity. It promotes production of antibodies. For which purpose? Humoral immunity. ओके ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोल के दो टाइप के रहते हैं ना, उसके लिए. सो द डीजेनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड मे बी what it called occur in old individual, so leading to which one? Decreased production of the thymosin, thereby weakening of the immune response बेटा. तो अपन ओल्ड पीपल में देखें तो क्या होता है, ये थाइमोसिन का सिक्रेशन कम होके उसमें इम्यूनिटी पावर क्या होता है बोल तो कम हो जाता है बेटा. सो इम्यूनिटी पावर कम हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है बोल तो डिसीज आने का चांसेस रहते हैं. जैसे कि अभी कोरोना आ रहा है ना, सो ये कोरोना कैसा बोले तो मेजरली इम्यूनिटी पावर जिसमें कम रहता है उसमें ही आ रहा है बेटा. ओके ना, सो लाइक दैट इज प्रेजेंट बेटा. सो अदर ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे. राइट, थैंक यू.